तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है, ये ऑलरेडी डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी एमबीबीएस आई थिंक सो इंडिया से ही की है, क्योंकि अभी इंडिया में ही No, sir. प्रैक्टिस। No, my MBBS is from China. ओके, चाहिए। इन्होंने एमबीबीएस ऑलरेडी की हुई है और अभी ही इज प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर इन इंडिया। तो इन्होंने हमें अप्रोच किया है फॉर जर्मनी के लिए। Sir, actually, ma'am, I called you regarding the Switzerland program, sir, not Germany. नीदरलैंड्स। Actually, sir, I was about to tell you about what happened. I actually tried for Germany earlier, but as I have done my degree, MBBS degree from China, हम्म। the Germany have said that that I need to uh, give a degree where I need to have a registration from that country. I have registration in India. So after I come back, I made the exam, foreign medical graduate exam, and I was registered in Telangana Medical Council. हम्म। So when I applied for to Germany for PG, they have put a query that as you are done from China, we need to have a registration from China. So we only get a degree from China, sir. We don't get any registration. So whenever we do MBBS from other country, so that was a query I got. Then later on, um, I canceled my plans of PG to Germany. So I don't know what to do actually. So I'm approached one guy who was doing his PG in Germany. ओके, देयर इज So नो। Dr. Deepak Mishra. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन, मैं सबसे पहले आपका स्वागत भी करता हूँ इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। मैंने आपकी क्वेरी समझ ली है कि आपने Yeah, ऑलरेडी, वेदर यू कैन अंडरस्टैंड द हिंदी आल्सो। yeah, okay, sir, no ओके, problem. तो आई Please अंडरस्टैंड, continue. आई अंडरस्टैंड द क्वेरीज। यू completed your MBBS from China, and after that you take the license from India, and Yeah, I have license in. it is a MCA exam. After clearing the MCA exam. Yes, 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 yes. And you practicing as a doctor in yes. Telangana. Telangana, yes. Okay. And you applied for your registration in Germany, and Germany government intimated that you are not eligible being you have no registration from China. They made this observation. Yes, Okay. yes. And now you are looking another country where you will do the PG. PG or health sciences also, Okay. medical informatics. Okay. Even So, uh, even in Germany, we can provide the provide the PG program like a health informatics. You are eligible, you can do that program in Germany itself. okay, But the conditions, the some program that program I think so it will be in English. That is we discuss here. If you have the IELTS, on the basis of IELTS, you can get the admissions there. Can you tell me the CGPA in MBBS from China which you have completed? What is the percentage or CGPA? mine percentage is 72%. We have a number of options for you in a Germany for doing the master program. I will send a list. मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश टॉट हैं। Okay, अगर इफ यू आर लुकिंग दैट प्रोग्राम, वी कैन अरेंज योर एडमिशंस देयर। okay. क्वेश्चन आता है कि whether after completing the that program you will be eligible to do a practice as a doctor, then it is not possible. Okay, okay. हाँ, मैंने ये बताया कि अगर आप वो पीजी डिप्लोमा पीजी कर लेते हैं, मास्टर डिग्री में आपको सजेस्ट करूंगा कर लेते हैं, तो अनदर फील्ड में यू हैव द ऑप्शंस। बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर, तो देन इट इज वेरी बिग हर्डल फॉर योर केस। Yes, yes, I understood that. If you want to do as a practice as a doctor, I will suggest some country. In that countries आपको सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो आपने जर्मनी में की है। जैसे आपने बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन आपने मुझे शायद बताया कि आपने B2 किया हुआ ऑलरेडी। B2 is completed. B2 आपने कब कंप्लीट किया?
almost 1 year now. So. 1 साल हो चुका है, आपको कंप्लीट है, 1 साल की वैलिडिटी रहती है इसकी। Yeah. इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहती है। अच्छा, B2 का only 1 year? 1 ईयर की है फॉर द पर्पस ऑफ अच्छा, it's only 1 year. फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन एनीवेयर इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज इसको एग्जाम कर देती हैं, दैट इज डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, Okay. बट इट इज ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर फॉर एडमिशन पर्पस। सर ये लाइफ टाइम नहीं रहते क्या ये नहीं डिग्री लाइफ टाइम, जो सर लाइफ सर्टिफिकेट टाइम नहीं, लाइफ टाइम सर्टिफिकेट ठीक है, बट फॉर द वीजा पर्पस और एडमिशन पर्पस दे विल टेल कि इट इज ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर। वी आर पुटिंग ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन जर्मनी फॉर स्टूडेंट वीजा, इवन हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, इवन फैमिली रियूनियन। तो ओके वहां पर व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन वी आर पुटिंग, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी रहती है, तो वो 1 साल तक कंसिडर करती है। अगर 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो वो कहते हैं कि इसको दोबारा करके दीजिए। ओके ठीक है, गॉट इट, अभी आई अंडरस्टूड। मैं आपको भी कुछ चीजें सजेस्ट कर देता हूँ। तो अगर जर्मनी में जाना है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, मैं आपको जर्मनी में मास्टर डिग्री करने के लिए भेज दूंगा, उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो वी कैन। ओके दूसरा ऑप्शन हमारे आपके लिए है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ओके, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो स्विट्जरलैंड कम्स इन द नॉर्वे? नॉर्वे है, अगर मैं फिनलैंड कहूँ, स्वीडन कहूँ, दैट कंट्रीज यू कैन आल्सो, वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर आपको अभी वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में जर्मनी चलेगा ना, हाँ जर्मन चलेगा? स्विट्जरलैंड, वो मैं अभी बताना था आपको, स्विट्जरलैंड में इट इज एक्सेप्टेबल जो है अभी आपके पास, उसका भी मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा क्या ओके करना। देखिए आपके लिए अगर ओके आपने कुछ भी करना है, स्विट्जरलैंड में यू कैन डाल सकते हैं, अगर वहां पर अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। दूसरा ओके बेल्जियम में भी यू आर एलिजिबल, यू कैन मेक द ट्राई देयर, बेल्जियम वहां पर डालना है। ऑस्ट्रिया में भी यू आर एलिजिबल, ऑस्ट्रिया की भी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, वहां पर भी आप अपना डाल सकते हैं। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग में भी डालना है तो वहां पर भी आप अपना ये ट्राई कर सकते हैं। ये 4 कंट्रीज हैं मेन, यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस है होने के, आपको मिल जाएंगे। अच्छा ओके हाँ हाँ, क्योंकि आपके पास V2 है, दिस इज वेरी गुड एसेट, दिस इज वेरी गुड एसेट्स फॉर योर केस सर, क्योंकि लोग से V2 का ओके नहीं है, बेचारे बीच में रह जाते हैं। और एटलीस्ट इन कंट्री में C1 की रिक्वायरमेंट रहती है, बट V2 लेवल कंप्लीट करने के बाद यू कैन मतलब डू समथिंग देयर। ओके ओके। सर आपकी आपके हिसाब से कौन सा बेटर है, जर्मनी या स्विट्जरलैंड? नहीं सर, मेरे ख्याल से तो ये है कि पुट द एप्लीकेशन इन दीज 4-5 कंट्रीज व्हाटसएवर आई रिकमेंडेड। फर्स्टली सिक्योर योरसेल्फ, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं पहले है, कि वहां पर भी यही इंटेरोगेशन ना आ जाए कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है चाइना का, तो वी कुड नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल। तो फर्स्टली पुट द एप्लीकेशन देयर इन दीज 4 कंट्रीज। अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं ओके तो इस जैसी कोई रीज नहीं है, सब बेस्ट बेस्ट कंट्रीज हैं, ये चारों की चारों जो मैंने अभी आपको सजेस्ट की। ओके, मैं मेरा प्रायोरिटी तो बस ओनली जर्मनी और स्विट्जरलैंड की है, तो बाकी कंट्रीज। जर्मनी और स्विट्जरलैंड में जैसे माई प्रॉमिस मैं 100% आपको दे सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम अभी आप कहें कि मैंने एज ए डॉक्टर ही वहां जाकर प्रैक्टिस करनी है, देन वी कुड नॉट गिव एनी टाइप ऑफ गारंटी। No, sir, no, sir. I have gone through that phase and I've made some queries also. I think it's not possible for mine But that because one. I am saying कि for these all the countries we can send you there for a master program, there is no Okay, any problem। आप इन कंट्रीज में किसी में भी, अगर आपकी फेवरेट okay, कंट्री जर्मनी है तो जर्मनी में आंखें बंद करके जाएं। अगर स्विट्जरलैंड में जाना है, वहां पर भी मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन है। सर ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज होंगे सर, कौन से यूनिवर्सिटीज होंगे, Entirely प्राइवेट और पब्लिक? exclusively we are dealing the public universities। आप यहीं पर भी जाएंगे आइदर इन जर्मनी, वहां पर आपको फ्री स्टडी मिलेगी, ऑस्ट्रिया में भी फ्री मिलेगी, लग्जमबर्ग में भी फ्री मिलेगी, लेकिन बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में पेड है। वहां पर 6,000 यूरो की ओके फीस है एक साल, 5,000 से लेकर 6,000 यूरो की साल की फीस। ओके ओके ओके। तो ये तो फी तो फ्री है, तो वो टेंशन नहीं है। सो ये टाइम का प्रोसेस, कब अप्लाई करना, कम, तो व्हाट इज द प्रोसेस, टाइम प्रोसेस? टाइम के प्रोसेस के लिए हमारी फीसेस क्या है, मेरा स्टाफ अभी आपको कांटेक्ट करेगा।
तो उसको कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको ये कहूंगा कि आंखें बंद करके चले जाएं, फिर अगर कुछ करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने यहाँ पे पैसे, यहाँ पे कितनी की सैलरी मिलती होगी? Okay. मैं एक और चीज पूछना चाहूँ, यहाँ पे कितने के पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है? And 60,000, not much. 60, साठ 70 हजार max. साठ That's हजार it. क्या है? अभी कौन से साल में पास आउट हैं आप? It's long back, sir. Actually, I wanted to accept 2012. I have almost 10 years of experience. I have. तो अब ये देखिए, मैं इस वीडियोस के थ्रू मैसेज भी देना चाहूंगा बाकी पब्लिक को भी। लोग क्रेजी है बहुत कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो अभी देखिए 10 साल का डॉक्टर साहब को एक्सपीरियंस है, अभी 60 हजार ही मिल पा रहा है। तो अभी ये प्रोफेशन में बहुत सारा कंपटीशन Yeah. हो चुका है डॉक्टर साहब, इसमें कंपटीशन तो काफी हो चुका है। Uh, too much competition. तो अभी आप बताइए, विदाउट पीजी, बहुत ज्यादा है. विदाउट पीजी तो क्या सर्वाइवल है डॉक्टर की विदाउट पीजी? हेलो? No, sir. No, sir. Quality of life ठीक नहीं है, and the pay is also bad, and opportunities भी बहुत कम है. क्वालिटी ऑफ लाइफ का आपने बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है। 24/7 डॉक्टर को परफॉर्म करना पड़ता है, फैक्ट है ना सर? Yes, yes. That is true. मैं सबसे ज्यादा जो जॉब समझता हूँ आपकी टफ है डॉक्टर की। मैं पहले आर्मी वालों की समझा, आर्मी वालों से टफ आपकी जॉब है। डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स के साथ आपका कम्युनिकेशन के टच में रहना है। हर टाइम आपके ऊपर वो लगी रहती है कि अभी किसी पेशेंट को कुछ हो गया, जल्दी जाइए, ये देखिए, ऐसे ही ना सर? हाँ, वही सर. हम अपने काम की हिसाब से, they are not paying us well. इन द तो सर्विस पे एज अच्छा नहीं है. तो ऐसे है कि ये आप, मैं लोग, हम सब, मैं सारे स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजता हूँ एमबीबीएस के लिए। तो ऐसे है कि लोगों का सिर्फ माइंड के अंदर यही है कि पता नहीं, बस हमें एडमिशन मिल गया, अभी डिग्री आ गई है। डिग्री के बाद भी देखिए कितनी स्ट्रगल है। अभी ये डॉक्टर साहब ने खुद बताया है, इवन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं सबको बताता हूँ, क्योंकि आप जैसे डॉक्टर से मैं आम जनरल डिस्कशन करता रहता हूँ कि बेचारे हमें अप्रोच करते हैं। तो स्टिल आप फॉरेन की स्टडीज के बारे में ढूंढ रहे हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप यूरोप में डायरेक्टली जाकर एमबीबीएस कर लीजिए, शेंगन कंट्रीज है मेरे पास, इंस्टेड ऑफ छोटी कंट्रीज में जाने के बजाय, तो आपके लिए वहां पर बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। वहां पर भी आप कई कुछ कर सकते हैं। अभी चाइना से एमबीबीएस की है, यहाँ पर भी 10 साल लगाए हैं। फिर अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भी फॉरेन में जाना है, तो डायरेक्टली फिर फॉरेन कंट्री में चले जाए। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो छोटी छोटी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, तो मैं इस वीडियो के थ्रू वो दे रहा हूँ। तो ऐसे डॉक्टर, मैं अभी आपको कुछ प्रोग्राम्स भेज रहा हूँ जर्मनी के ओके. और स्विट्जरलैंड के। तो आपने वो प्रोग्राम चेक कर लेने हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो देन वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन। और इससे अच्छा ही कमाएंगे सर। अगर सुनिए, अगर आप डॉक्टर प्रोफेशन में भी काम नहीं करेंगे ना, तो तब भी इससे अच्छा ही कमाएंगे भाई, इन दोनों और जो मैं बस वो वही मेडिकल फील्ड में जाना चाहता, मतलब रिलेटेड टू मेडिकल रिलेटेड, फील्ड जो है. 100% रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड में रहेगी। तो लेकिन ये है कि थोड़ी या वही. स्ट्रगल, हाँ, थोड़ी स्ट्रगल जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जाते कुछ नहीं होगा। आप जाएंगे, सिस्टम को सीखेंगे, देन जाकर आप अर्निंग स्टार्ट होगी। अभी ये देख लीजिए, 2-3 साल सेक्रीफाइस वहां जाकर करने पड़ेंगे। या तो सर आप एक्चुअली क्या है, मतलब सर आप सिंगल है, मैरिड है? डू आई हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन अगेन? आई एम सिंगल. आई एम सिंगल, सर. क्या कह रहे हैं आप? आई एम सिंगल, सर. आई एम वो ठीक नॉट है। मैरिड. आपका क्वेश्चन क्या था? सर, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था मुझे अभी, कुछ पूछा था। नहीं, मैं बस यही पूछ रहा था कि हाउ मच वुड बी द सैलरी, आई मीन रेंज ऑफ सैलरीज देयर. जिनकी डॉक्टर्स की या वैसे स्किल्ड लोगों की? स्किल लोगों की, मतलब जो आपने ये कंट्रीज बताई है, यहाँ पे मिनिमम बेसिक 1500 यूरो है, 1400, 1500, 1600 यूरो जो मिनिमम सैलरीज हैं। जो ब्लू कॉलर जॉब्स, ये ब्लू कॉलर जॉब्स की सैलरी बता रहा हूँ। तो आप डॉक्टर है, 60 हजार रुपया ले रहे हैं, वो 1,60,000, 1,50,000, 1,40,000 रुपया ब्लू कॉलर जॉब में ले रहे हैं लोग। ओके. हाँ। सो यूरोस में. मतलब वहां पे ये दोनों कंट्री की, स्विट्जरलैंड की भी और जर्मनी की, लेकिन टैक्स है वहां पे, टैक्स भी लगता है। इवन लाइफस्टाइल इज वेरी गुड दोनों कंट्री का। बेस्ट कंट्रीज हैं, गूगल में डालिए पता चल जाएगा।
आपकी जो सैलरी, डॉक्टर की जो सैलरी बहुत है, 4-4 5-5 लाख रुपए की महीने की सैलरी से, सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर की, जितने पैसे कमाते हैं वहां पे। Yeah, I know, 5,000 euros, around 5,000 euros. तो ठीक है तो डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं ट्राई किया था तब, लेकिन ऐसे है डॉक्टर या साहब, ओके। मैं अभी अपने स्टाफ की ड्यूटी लगा रहा हूँ, वो अभी आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है सर? ओके ओके, डन। थैंक यू सर, धन्यवाद।